Assalamu alaikum. My name is Sayyid Muhammad Awais Abbas Hussain. My topic is uptake and transport the plant nutrient. Uptake and the transport of plants nutrient. Uptake and the transport of the minerals nutrients. Plants obtain carbon and oxygen from atmosphere. Their nutritional requirements are obtained from the minerals and the water from the hydrogen from the soil. The whole process can be linked to a person transportation pool, pulling a bucket full of water, stress on the water column with a steel rope, unbroken in the continuously water column with a strong cohesive forces. Next, uptake of the mineral ions. All minerals cannot be passively absorbed by the roots. Next, this is due to the following reasons. Number 1. Minerals are present in the soil as charged ions which cannot move across cell membranes. Number 2. The concentration of the minerals in the soil is usually lower than the concentration of the minerals in the roots. Uptake of minerals ions with image you can see. So most minerals must enter the roots by the active absorption into the cytoplasm of the epidermal cells. The active uptake of the ions is partly responsible for the water potential gradients in the roots and therefore for the uptake of the water by osmosis. Some ions also move into the epidermal cells passively. You can see on the screen. Next, ions are absorbed from the soil by the both passive and active transport specific proteins in the membrane of root hair. Cells actively pump ions from the soil into the cytoplasm of the epidermal cells. You can see on screen. Next, the endodermal cells may have transport proteins in the cells. Transport of the mineral ions. After the ions have reached xylem through active or passive uptake, both their further transport up the stem to all parts of the plants and through transpiration stream. Transport of the mineral ions. The chasing of the mineral elements are growing region of the plant, apical and the lateral mesostems, young leaves, developing flower, fruit, seed and the storage organ. Seed and fruit and apical mesostems. Unloading of the mineral ions takes place at the fine vein ending through diffusion and active uptake by these cells. Mineral ions are rambulized from older seedling parts. Older leaves export their minerals content to the younger leaves. In deciduous plants, minerals move the other part before leaf fall. Readily mobilized elements are the phosphorus, sulfur, nitrogen and the potassium. Elements that are structural components like calcium are not rambulized. You can see on screen amino acid. Analysis of the xylem aggregate revealed that through some nitrogen travels as inorganic ion, much of it is carried into the organic form as amino acid and related compounds. Small amount of the phosphorus and the sulfurs are carried as organic compound. Small amount of the exchange of material take place between xylem and phloem. Exchanging of the materials in xylem and नेक्स्ट हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी यूरिया जो होती है ये हम क्रॉप्स में यूज़ करते हैं ताकि जो प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है वो बेटर हो सके, जो इसकी हाइट है प्लांट की वो अच्छी हो जाए। कद बढ़ाने में यूरिया जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूरिया इस्तेमाल करने से फसल का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शानदार ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ जो बेटर ग्रोथ ये हमें प्रोवाइड करती है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब आप पानी लगा रहे हो, पानी इरिगेशन करने से पहले आप इसको छट्टा से इस्तेमाल करें या इसको पानी में आप हल करके सॉल्व करके इसको पानी के ज़रिए फ्लड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं DAP के बारे में। DAP हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। इसका कलर है ब्राउन कलर होता है, मतलब 32 खाद जो होती है और ये DAP इसमें 32 में जो होता है उसमें यूरिया और हमारे पास DAP मिक्स होती है।
तो हमारे पास इस टाइम अवेलेबल जो थी DAP है। लॉकडाउन की वजह से शॉप्स बंद थी तो हमें फर्टिलाइज़र नहीं मिल सकी, नहीं तो मैं आपको लाइव फर्टिलाइज़र के कलर और बाय करके आपको दिखाता कि फ़र्टिलाइज़र किस तरह की होती हैं। तो इस टाइम अवेलेबल मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ DAP थी। तो DAP जो है इसको हम इसका कलर ब्राउन होता है। उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि बेहतर है कि जब आप फसल को सो कर रहे हैं लगाने से पहले इसको छटा दें। ज़मीन में बिखेरने के बाद आप उसके ऊपर हल चलाएं, हल चला के इसको सोल्व करें। तो ये आपको प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। इससे आपके पौधे में ताकत आती है। मेन रूट्स जो होती हैं वो उसके साथ बेटर होती हैं, ताकत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं रूट्स। इससे अगर आपको DAP नहीं मिल रही तो बेस्ट है कि आप एनिमल लाइफस्टॉक का मैन्योर इस्तेमाल करें, जिसे हम गोबर कहते हैं। गोबर का गीला या सूखा उसको मिक्स करके आप उसको ढेरी बनाएं उसकी ज़मीन में और उसको वहाँ पे हल चला के उसको अंदर मिक्स करें ज़मीन में। तो ये मैन्योर भी DAP की तरह आपको रिज़ल्ट देगा। इससे आपकी जो स्टेम्स हैं और प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग होता है और प्रोडक्शन में भी बहुत फ़र्क आता है। नेक्स्ट हम इसको बात करते हैं हम अमोनियम क्लोराइड की। ये हमारे पास वाइट कलर की अमोनियम क्लोराइड है। इसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जिन पौधों के पत्ते जो हैं येलो हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, उनके लिए ये अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं ताकि जो लीव्स का कलर है वो सही हो जाए। अमोनियम क्लोराइड की ज़मीन में अमोनियम क्लोराइड की वजह से लीव्स प्लांट के जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। ये प्लांट्स में बहुत ईजीली अब्जॉर्ब करती है। इसको भी हम पानी में सॉल्व करके तो इसको हम फ्लड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटाश नाइट्रेट की। ये है हमारे पास पोटाश नाइट्रेट। इसको ये एक स्टोन फर्टिलाइज़र है, मतलब पथरीली एक खाद इसको कह सकते हैं। जिन ज़मीनों में नहरी पानी लगता है ना उसमें इसकी कमी बहुत कम होती है। मतलब नहर में पोटाश का जो है ना इजाफा होता है नहरी पानी में। तो जिस ज़मीन में नहर का पानी इस्तेमाल किया जाता है ना उस ज़मीन में इसकी कमी बहुत कम होती है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जब आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपनी ज़मीन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोइल सैंपल लें। सोइल सैंपल लेके आप उसको किसी लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाएं ताकि आपको सही पता लगे कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की ज़्यादा कमी है, तो आप वो यूज़ करें। पोटाश यूज़ करने से पहले भी आपको अपनी ज़मीन की सोइल को टेस्ट करना चाहिए। ये पोटाश नाइट्रेट जो है हमें सोइंग से पहले इस्तेमाल करनी जो है ना वो सही रहेगी। कि जब आप सोइंग कर रहे हैं किसी भी क्रॉप की तो आप इसको पहले यूज़ करें। आप इसको पहले इस्तेमाल करें। 40 से 45 दिन के बाद इसका असर शुरू होता है। तो बेहतर ये है कि जब आप सोइंग कर रहे हैं उससे पहले इसको छटा कर दें। छटा करने के बाद आप हल चला के आप अपनी जो क्रॉप सो कर रहे हैं उसको सोइंग कर दें ताकि जो 40 से 45 दिन के बाद इसका असर शुरू हो और आपकी फसल को फ़ायदा मिले। ये क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी है। इसमें अब आप फोलर पोटाश भी आ रही है मार्केट में, जैसे कि FMC कंपनी की कैटलिस्ट हो गई, जाफर वालों की K-लीफ हो गई। तो इनके आप स्प्रे कर दें। 2-2 3-3 पत्ते जो एंड में होते हैं प्लांट के, जब आपका पौधा जो है फल उठाने के करीब हो, जैसे कि वीट होगी, कॉटन होगी। आजकल कॉटन का मौसम चल रहा है तो पौधे फल उठा रहे हैं। तो जैसे दूसरी तीसरी टहनी पे ब्रांचेस पे जब लीफ आता है आपका फ्रूट, तो तब आप इसका स्प्रे करें ताकि जो आपके फ्रूट है उसका कलर भी अच्छा हो और क्वालिटी भी फ्रूट की बेस्ट आए। तो इसको आप पोटाश का स्प्रे बेस्ट होगा कि आप फोलर पोटाश आ रही है तो इसका जब आपका क्रॉप फल उठा रहा हो तो आप इस पर पोटाश का स्प्रे कर दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोल्यूबल पोटाश सल्फेट की। ये पाउडर फॉर्म में होती है जिसको हम स्प्रे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कि इसको आप स्प्रे वाले टैंकी में अपने 1 एकड़ में आप इसको 500 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो 500 ग्राम के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे अपने टैंकियों पे कि जितनी 1 एकड़ में अगर 4 टैंकियाँ कर रहे हैं या 5 टैंकियाँ कर रहे हैं तो आप 500 को डिवाइड कर दें। उसको पानी में मिक्स करके आप इसका स्प्रे करेंगे ताकि जो आपका फ्रूट है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कॉटन लगाई हो तो वो जो टिंडे हैं उसके वो मोटे हों और कलर अच्छा हो और वज़नी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में है फर्टिलाइज़र्स के बारे में
तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी हर फर्टिलाइज़र के बारे में, रूट्स के अपटेक्स के बारे में, रूट्स के प्लांट्स के अपटेक के बारे में, उसके ट्रांसपोर्ट के बारे में कि कैसे प्लांट्स में अपटेक्स होती हैं, कैसे अपटेक सिस्टम होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस प्लांट्स में होता है, और फर्टिलाइज़र्स कौन कौन सी फर्टिलाइज़र्स हैं, बेसिक फर्टिलाइज़र्स आपको बता दी हैं, और इनका यूज़ कैसे होता है, इनका कलर कैसे होता है, और बेस्ट कैसे है कि आप फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करें। बेहतर यही है कि आप अपनी सॉइल को सबसे पहले टेस्ट करें, सॉइल को किसी लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद जब आपको पता लगे कि आपकी सॉइल में ये डेफिशिएंसी है फर्टिलाइज़र, तो तब आप इस्तेमाल करें। तो बेहतर है कि आप फर्टिलाइज़र को सॉइल टेस्ट करवाने के बाद फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।